أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Now, as previously I was continuing the lectures on hematology. This is clinical hematology and it is practical hematology. I want to discuss one very typical and unique type of presentation today. According to Professor Ishaq Sheikh, it is the presentation. Actually, one should need it because whatever written in the textbooks and in the internet, they are misleading. One of the problem is this, that in the season, that is hot seasons and the rainy seasons, specifically speaking in the rural areas which are very near to cities, they usually bring these cases for the tertiary care hospital. What is the problem? The problem is this, as you know. It is interesting presentation. It's a long presentation. So those who are interested in this field, and this field is actually hematology, but it is included in what we call enveneration, something like this. And it was asked many times in the FCPS Part 2 examinations. Depending upon the knowledge of the examiner and how he tackle you, the fate of the long case will be decided. So you please try to understand these problems now. Now this is something about abnormal clotting, or I will say the abnormal bleeding. Both will be taken as today in one going, and tomorrow onwards I will take the abnormal bleeding separately and abnormal clotting separately to conclude the clinical hematology. I am a Dr. Sayyid Ali Haider, visiting professor of medicine and faculty of the GSMC, United Sindh Medical University, Karachi. I have got actually vast experience in this as a management part or as a observer part. Okay, something about the abnormal clotting. The scenario: a 32-year-old peasant, that is farmer, was struck by some hard penetrating object at his right toe at the night when he was opening water to the field. It is usual in the midnight or 12 o'clock you have to open the water to the field. And there was the darkness there, and because of the darkness there was immediate pain. He was struck by some penetrating object, and with immediate pain followed by bleeding. Bleeding occurs in about, you say, 10 to 15 minutes after that bite or barb strike. What do you say? The primary care tests the wound, because the primary care is the part in the rural area where the nursing attendant was present all the time, 8-hourly duty. He does the wound and advised analgesics, something like Dunstan or whatever it is. After 6 hours, the patient became drowsy. It is actually the story in Thatta district. He was drowsy and with oozing blood from the wound. Now then, this patient was taken to the secondary care hospital in the main Thatta
urban health center. So he was examined here. Now, it was now 8 o'clock in the morning. The temperature was 99 degrees Fahrenheit and the pulse was 112 per minute. BP was 90/46, anemia was positive, and jaundice was positive. The petechial rashes all over the body positive. When he was shifting to the ICU and the secondary care hospital, he started vomiting with blood. Then he became unconscious at ICU. And then they transferred it to the, definitely afterward they are thinking about what has happened. Now the hemoglobin was 10 gram and TLC was 12,400 and platelet was 54,000. MCV was 80, total bilirubin is 1.9, direct 0.8. You minus it, so it is about, you can say, it is 1.2 direct bilirubin, indirect bilirubin. ALT is 50, AST is 43, alkaline phosphorus is 123, and PTNR is 2.5 is raised. APTT is 65, and control of the APTT is 35. It means it is double than that. Both the intrinsic pathway and the extrinsic pathway of the cascade clotting mechanism is disturbed. It means that. Then he was taken to the tertiary care hospital in Karachi and handed over to our department. And the story begins here. Because it was not written in this scenario, but he was shifted there after, you can say, 12 hours or 16 hours after this event. So I examined this patient myself. So there was a clear cut, fang marks on the foot, or deep marks on the foot, and it was ecchymosis around the foot, very, very red, very inflammatory, and the patient is drowsy at the time, the state of my examination. It was 1997. The story begins at that time. And other measures I have taken, because the case was handed to me. I was the RMO, the senior medical officer on call. I took him to my ICU, and then I requested all the person who have arrived with this patient that please donate the blood as much as you can. I want 12 or 13 or 14 pints of the blood at the right time. At this time I started management, which was recommended. The question here is this, that what is the initiating cause of this condition, and how will you further manage, what is the diagnosis, and how will you manage? And these are the 4 questions always asking in your life. The initiating cause of this condition. Some stroke occurred at the time he was opening the water to the field, but he has not seen anything in the bushes in the field, and the examination has been done. It was actually different parts of the part show the bleeding points. So what is your opinion? And this is the case. If you see, there is a mark here, bluish here, here. One is here and one is here. There is a gap between the two. There is redness here, although at this time there is no bleeding seen here. The second picture is seen here when the bleeding occurs, and after one there is muscles and surrounding the skin, they are echymosed, and it is atrophied, it is necrosed. And then
This was the condition afterwards on the foot. These are bleeding points, gangrene, all over the necrosed. This part is necrosed. You see this bleeding here. What we'll do? On the hands, these are petechial hemorrhages on this person. Agnival, and even afterwards, this was the person. You see the eyes here, reddish tinge. Absolutely, this is the episclerotic type of a thing, and this is the bleeding in the lower conjunctiva. And here there are patches of, you see, ecchymosis, erythemas, etc. Soft data. Of course, soft data, there is something strike on his foot. Maybe it is a thorn. There are thorns are very, very poisonous thorns are present in the field. They can give the allergic reaction. What they do is that a patient is sensitive and he has a sensitized person, then it is possible to have hypersensitivity type 1 or type 2 reaction. It's possible. Secondly, maybe it is bitten by a spider, for example. Spiders are there in the fields, and there some are very venomous type of spiders. Third is possibility of the scorpion. They are also present, and they bite, and they give pain, and patient can bleed at that point. It's possible. The fourth is bitten by a snake there. The snake, if it is there, so there are 4 differential diagnoses in this condition. All are innovation, mainly innovation, that is called. Although this subject is very, very dry type of subject, it is very important as a medical officer. Somebody is looking after these problems. Take hard data. Hard data in this condition is definitely the effect of the things, the examination, the different parts of the parts are bleeding, and it means that the clotting disturbances occurs. He lost his normal clotting mechanism. That is 100% sure about it. But what is the initiating or predisposing factor? Maybe most probably it is the snake bite, which can cause this problem. What type of snake he was bitten, we don't know. Still we don't know. Differential diagnosis, initiating cause 4, I have already told you. It may be a thorn, it may be a scorpion, it may be a spider, it may be a snake. Diagnosis to me, when it was handed over to me, the PTR and I was disturbed, and the ecchymosis was there, and the bleeding was there, and the foot was necrosed at the time of my presentation. So this is the most probably the bite of a snake. Snake bite diagnosis, because I justified it. It is not thorn, it is not scorpion, it is not spider, it is snake. A horrible object. Although it is very, very, nobody likes this thing. इस पे जो है ना, मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ. वाक़या ये होता है कि आर्मी में क्या करते हैं, हैदराबाद जोन की बात हो रही है. हैदराबाद में पोस्टिंग करते हैं ना, आर्मी के ऑफिसर डॉक्टर्स को पोस्ट करते हैं, तो सज़ा के तौर पे वो क्या करते हैं कि छोर में भेज देते हैं. छोर जो होता है उनकी एक वहाँ पे बटालियन है, और वहाँ पे जो है ना, ये थरपारकर का एरिया है. यहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी बात का होता है. आप उससे तसव्वुर भी नहीं कर सकते वहाँ जितने स्नैक्स होते हैं. आपको तमाम स्नैक्स मिल जाएंगे वहाँ पे, जो आप सोचते हैं बैठ के, या आपने फिल्मों में देखे हैं, जोग्राफिक, नेशनल जोग्राफिक में देखे हैं ना, वो आपको सारे मिल जाएंगे. तो वो इसलिए वहाँ भेजते हैं सज़ा के तौर पे. जब मैं वहाँ पहुँचा एट द टाइम कि मैंने रिपोर्ट किया कि मैं भी आर्मी में था,
तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ का जो डॉक्टर है वो बीमार हो गया, वो बीमार होकर वो अपने घर चला गया है, तो अब आप ज़रा वहाँ जाके संभाल सकते हैं, लेकिन आपको सज़ा के तौर पे नहीं भेज रहे। तो 1 महीने के लिए आप वहाँ चले जाएं, जब तक वो ठीक हो जाएगा तो फिर आपकी जगह ले लेगा। मैंने कहा नहीं, ये सज़ा कैसी चीज़, काम करना है तो काम करना है। यहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया। मुझे लोगों ने खौफजदा किया जाने से पहले कि भाई अपना ख्याल रखना, वहाँ पे ये चीज़ मुसीबत बन जाएगी, आपको नॉलेज है इसकी। मैंने कहा नहीं, मुझे इतनी कोई नॉलेज वाली नहीं है, मैंने जो फाइनल ईयर में पढ़ा है बस वही मुझे आता है। तो कहने लगे फाइनल ईयर में क्या पढ़ा है आपने? मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा खासा पढ़ा है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो जाओ तो भुगतो इसको। जाओ वहाँ पे, वहाँ पहुँच गया मैं, और फिर वहाँ मेरा आमना सामना हुआ है। अब जो भी आप सुनने वाले हैं ये वहाँ की एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं आपको सुना रहा हूँ। वहाँ भी डायग्नोसिस बनाते हैं फैंग मार्क से बनाते हैं। 2 पंक्चर वुंड्स होते हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वेरिंग फ्रॉम 8 मिलीमीटर टू 4 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज इन्वॉल्व। अब इसमें देखिए 2 मेजर क्लासेस हैं जो फील्ड में होती हैं, जो वेनोमिनस होती हैं यहाँ पे। एक जो है एलेपिड होती है, जिसमें कोबरा वगैरह आते हैं, या रसल वाइपर आता है, और दूसरी जो फील्ड है वो वाइपरिडी आते हैं। इसमें वाइपर स्मॉल भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। अच्छा यही याद रखिएगा, ये एक समझाने की बात आपको बता दूँ तजर्बे की, कि जो वाइपर होते हैं ना वो जब काटते हैं तो वो जैसे इंजेक्शन आप लगाते हैं ना, इस तरह का उनका होता है। उनका फैंग जो होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है, डिस्टेंस बहुत छोटा होता है उनका। डबल मार्क तो वो देते हैं, सही है, लेकिन उनका उनके मुश्किल जो है 1 मिलीमीटर भी नहीं होता। लेकिन जो एलिपिड या कोबरा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो अगर बाइट करता है, बाकायदा बाइट करता है, तो उसके अंदर वो चबाता है, बाकायदा चबाता है उसको, डसना नहीं होता वो। जैसे आप काट लें किसी को, फिर क्या होगा, तो ऊपर के दांत और नीचे के दांत भी होंगे ना आपके। तो ज़्यादा जब इसको आप ह्यूमन बाइट जिसे कहते हैं, आप काटेंगे तो ऊपर भी निशान आएंगे, नीचे भी आएंगे। तो कोबरा बाइट में भी यही होता है। तो कोबरा में भी फैंग मार्क्स सेपरेट होते हैं, अच्छे खासी दूर पे होते हैं, फासले पे होते हैं। दोनों के इफेक्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। ये ख्याल कीजिए वाइपर के इफेक्ट अलग हैं और कोबरा के इफेक्ट्स अलग हैं। However, a side strip may produce only a single puncture. ये हो सकता है पॉसिबल, while multiple bites could result in a numerous fang mark. और एक बंदा जो है ना वो अपना आप को बचाता ही नहीं है ना, वो वहीं पे खड़ा रहता है, तो मल्टीपल बाइट्स करता है। फिर वो स्नेक जो है ना, उसको तो या दुम पे पाँव आपने रख दिया गलती में, तो बार बार काटेगा वो, तो एक जगह काटेगा फिर दूसरी जगह काटेगा, तो छोड़ दिया जाए। तो स्नेक कभी भी जो है ना वो खुद नहीं काटता है, वो डिफेंस में काटता है। उसको कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने पॉइजन को ज़ाय नहीं करता। वो फ्रॉक के ऊपर ज़ाय करेगा या माउस पे ज़ाय करेगा ना। अगर उसे फ़ायदा है तो उससे, ह्यूमन को काटने से तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ह्यूमन से तो वैसे भी वो खौफजदा होता है। तो ये बात जो लिखा है इन्होंने न्यूमरस फैंग मार्क, ये कंडीशन जो यहाँ लिख रहे हैं, हम ये इसलिए आपको बता रहे हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही स्नेक है जो बार बार जो है ना काटता है, एक दफ़ा नहीं काटेगा वो फिर दोबारा फैंग धस देता है। वो यहाँ पे पाया ही नहीं जाता है, पाकिस्तान में नहीं होता है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, कुछ अमेरिकन कंट्री में होता है। और वो जो होता है वो मैम्बास होते हैं, ब्लैक मैम्बास हैं या फिर ग्रीन मैम्बास हैं। वो जो होते हैं वो ख़तरनाक तरीन सांपों में शुमार किए जाते हैं, डेंजरस स्नेक हैं बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल कहने का स्नेक का जिक्र अगर करेंगे तो 4 घंटे में, अगर आप बोलें इस स्पीच को जो मैं कर रहा हूँ, तो ये 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस कदर मवाद जमा है मेरे पास कि अगर मैं ट्रांसफ़र भी करना चाहूँगा ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर इसको छोड़ देते हैं। तो बैलेंस मेथड है जो अडॉप्ट किया गया इनको मालूम करने के लिए, आया एक्चुअली जो बाइट हुई है ये नहीं है, लेकिन ये अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बैलेंस मेथड जो होते हैं किसी ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे, अब ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो जदीद तरीन तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये तय करना चाहिए कि पॉइजनस स्नेक है और नॉन पॉइजनस स्नेक है।
आपको मालूम है कि 90% स्नेक नॉन पॉइजनस है, 10% पॉइजनस है। इत्तेफाक की बात ये, जिस सूबे की मैं बात कर रहा हूँ, सिंध है, इसके अंदर 90% स्नेक पॉइजनस है और 10% नॉन पॉइजनस है। प्रॉब्लम ये वर्ल्ड ओवर में देखेंगे तो 90% नॉन पॉइजनस है और 10% पॉइजनस है। तो हमारा एरिया जो आता है वो पॉइजनस जोन में आता है। नॉन पॉइजनस वाले स्नेक हैं यहाँ, लेकिन कम है। फिर स्पीशीज़ कौन सी है? अब स्पीशीज़ में आप डिवाइड करेंगे अगर, तो उसमें जो है ना, जो मैंने पहले भी बताया, एलोपेडी हैं जो बड़े स्नेक्स होते हैं। फिर दूसरे जो है जैसे कोबरा है और रसल वाइपर है, यहाँ होता है, बिल्कुल होता है। नामबास हैं जिनको जो यहाँ नहीं होता, उसके तो जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी जो कैटेगरी है इसकी वाइपरेडी की, स्मॉल स्नेक्स हैं, वाइपर्स। और ये स्मॉल स्नेक्स होते हैं और इनकी जो बाइट होती है वो उमूमन जो होती है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस से बाइट, यानी जो फैंग मार्क है बहुत स्मॉल होते हैं इनके। और थर्ड होते हैं 5 पाइथन्स होते हैं जो कि अजदहे कहलाते हैं। चौथे जो है स्नीक, जो सी स्नेक्स होते हैं, तो वो सी के पास पाए जाते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये वो स्नेक्स होते हैं जो कि ज़्यादा स्पीशीज़ की वाइज अगर आप डिवाइड करें तो और भी हैं, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वेनोमनस और नॉन वेनोमस को कैसे पता लगाएंगे। देखिए, वेनोमस स्नेक अगर कोई होता है तो स्टाउट, डल कलर्ड, अब्रप्टली टेपरिंग टेल होती है, ये उसकी निशानी है। लेकिन नॉन वेनोमस स्लैंडर होता है, बहुत पतला होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है, ग्रेजुअली टेपरिंग टेल होती है, आहिस्ता 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 करके टेल जो नीचे आती है। इसमें जो होती है अब्रप्टली चौड़ा होता है, फिर टेल छोटी हो जाती है, एक निशानी। टेल में भी राउंडेड और फ्लैटेड, इसमें जो है या राउंडेड टेल या फ्लैटेंड होती है। नॉन वेनोमस में राउंडेड टेल ही होती है हमेशा। बैली स्केल्स में ब्रॉड होते हैं वेनोमस में, और नॉन वेनोमस के जो स्केल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, डू नॉट एक्सटेंड द एंटायर विड्थ, पूरी तरह फैले हुए नहीं होते। हेड इसका ट्रायंगुलर शेप होते हैं वो, लेकिन नॉन वेनोमस के जो होते हैं वो राउंडेड और ओवल उनके होते हैं, सर जो होते हैं। ये नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वजह ये है कि जो लोग स्नेक बाइट करते हैं, जिनको हो जाता है, वो मार भी देते हैं स्नेक को, अक्सर वो लेके भी आ जाते हैं और फिर ये पूछते हैं आके कि भाई ये वेनोमस था या नॉन वेनोमस था। अगर वेनोमस था तो कौन सा था, ठीक है ना। ये तो जवाब फिर अब वो जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाते थे हमारे प्रोफेसर हमको, तो वो कहते थे कि है तो ये सब्जेक्ट ज़ाहिर है आपके लिए ड्राई होगा बहुत, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जूरिस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये हेमाटोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा अब ये, और इंटॉक्सिकेशन में भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एनवेमिनेशन जिसे मैंने कहा। तो ये जान तो नहीं छोड़ेगा, चाहे आप सिंध में पोस्टेड हो, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे यहाँ पे भी हो। और अगर आप बाहर हैं मुल्क से, तो वहाँ पे जिन इलाकों में आप गए हैं वहाँ पे भी ये स्नेक पाए जाते हैं, और जो नहीं पाए जाते वो बहुत कम एरिया थे वर्ल्ड के। मिसाल के तौर पे जो है ना, आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल के कंट्रीज़ हैं और न्यूजीलैंड है, वहाँ कोई स्नेक पाया नहीं जाता। बस कुदरती तौर पे अल्लाह ने वहाँ पे अभी तक तो कोई स्नेक जो है ना नहीं बनाया, वहाँ पे जंगलों में नहीं पाए जाते। वहाँ सेफ्टी है बिल्कुल उनकी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। कहाँ पे बिल्कुल होते ही नहीं है ना। जो अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा स्नेक्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दुनिया में ख़तरनाक तरीन सांप पाए जाते हैं। और वो दुनिया का ख़तरनाक तरीन सांप उसको हम कहते हैं कि जिसकी इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब उसने बाइट किया है और डेथ हुई है, उसके दरमियान जो पीरियड है वो बहुत स्मॉल हो। नंबर 2 कि उसकी जो लीथल डोज LD कहते हैं वो बहुत कम हो, और उसमें वो मार दे आपको। तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ख़तरनाक तरीन स्नेक जो वर्ल्ड में पाया गया वो टाइपान है, TAIPAN। ये यहाँ पे नहीं होता, ये सिडनी के एरिया जो जंगल है वहाँ पे होता है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ पे जो इसको काट ले तो बच नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो 10-15 मिनट में पहुँच गया तो पहुँच गया, 15 मिनट के अंदर एंटी वेनम मिला उसे तो वो बचेगा, और 15 मिनट में नहीं मिला तो फिर वो नहीं बच सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल।
इट इज़ मोस्ट जो है ना डेंजरस वन, और उसका जो है ना लीथल डोज भी बहुत स्मॉल है, और उसकी कहते हैं कि 1 ml में वो 15 आदमी मार देता है। 1 ml सिर्फ उसके अंदर जो अगर पॉइजन है और वो काट ले तो उसको डिवाइड कर दें अगर आप 1 ml को 0.1111 करके, तो 1 ml होगा, तो वो 0.1 ml में ही मार देगा आपको। इतना डेंजरस स्नेक होता है ये, और 5 मिनट से 15 मिनट के अंदर मार देगा। ये सबसे ख़तरनाक स्नेक है टाइफान। दूसरे नंबर पे जो आता है वो मेम्बा आते हैं, ब्लैक मेम्बा। ब्लैक मेम्बा का भी मसला यही होता है कि वो भी उसकी जो लीथल डोज होती है वो जो होती है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। वो उसके अंदर अगर वो चली जाए 1 ml से ऊपर, और अगर आधे घंटे के अंदर उसे नहीं मिली इमदाद, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, फिर नहीं बच सकते आप। तो दोनों जो स्नेक्स हैं ये पाकिस्तान में होते ही नहीं, क्योंकि दोनों स्नेक पाकिस्तान में नहीं होते, लेकिन मैंने आपको तस्करा कर दिया इसका। हमारे पास जो पाए जाते हैं कि वो जो स्नेक्स हैं वो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कौन से होते हैं। और अगर आप देखना चाहें और रिसर्च करना चाहें उस स्नेक को, तो हेड स्केल स्मॉल होते हैं वेनमस के, इसके लार्ज होते हैं नॉन वेनमस के, और एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ द टीथ इन द अपर जॉ आर मॉडिफाइड टू फॉर्म फैंग्स। अपर जॉ के अंदर जो टीथ होते हैं उसके अंदर कम से कम जो अपर जॉ में फैंग्स के तौर पर बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर नॉन वेनमस है तो ऑल टीथ आर यूनिफॉर्मली स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं साइज। पाइथन्स में भी ऐसे ही होता है, वो भी नॉन वेनमस स्नेक है, और उसके अंदर कोई पॉइजन वॉइजन नहीं होता है, वो दम घोट के स्ट्रॉन्गुलेशन करके मारता है, इसलिए उसकी टीथ जो यूनिफॉर्मली स्मॉल इन साइज होती है। सलाइवा कंटेन्स टॉक्सिक पेप्टाइड, ये ही वो सलाइवा है जिसको उन्होंने एक्चुअली फैंग के अंदर से बाहर आता है। फैंग होता है उसके अंदर, उसमें होल होता है, उस होल के ज़रिए वो इंजेक्ट करता है। इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके सलाइवा जो होता है एब्सोल्युटली नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन वेनमस का। लोग घरों में भी पाल लेते हैं इनको, नॉन वेनमस को। अब इन्होंने समझाने की कोशिश की है ये एनाटॉमी इसकी, मोर्फोलॉजी, ये डिफरेंट पार्ट्स को उन्होंने उजागर किया है इस स्नेक को। इसको पकड़ा है, और उसको पकड़ के बहुत छोटा स्नेक है ये। फैंग्स दिखाए हैं, इसके आई बॉल्स दिखाई हैं आपको, टेम्पोरल एरिया दिखाया है, प्रीनेजल एरिया, पोस्टनेजल, ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, समझाने के लिए बताई हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं स्केलेशन के लिए। यहाँ पे भी स्केल्स हैं, यहाँ भी स्केल्स हैं, यहाँ भी स्केल्स हैं। जितने बड़े स्केल्स होंगे, हम आपको पहले भी जैसे मैंने बताया वो नॉन वेनमस होगा, बड़े बड़े स्केल्स हैं। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्केल्स होंगे तो वो पॉइजनस स्नेक में होंगे। फिर इसके अंदर जो है ना उसके जो जबड़ा दिखाया है उन्होंने, ये मेंटल है, मेंटल बेल्स है, ये मेंटल ग्रूव है इसका, ये जुगलर है, ये फर्स्ट मेंटल है, और ये पोस्टीरियर, ये सारी रिसर्च की गई है इसके ऊपर ना। जब स्नेक को स्टडी करते हैं ना, अगर बाइट को भी आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये एनल कनाल इसकी होती है, ये सब कॉर्डल एरिया होता है इसका, जहाँ से वो कॉपलेट करता है, वेंट्रल एरिया होता है इसका। और उसके बाद ये इन्होंने टाइप्स बताई हैं, आपको दिखाई हैं इसमें। ये रैट स्नेक है, पैटस मिकोजा, जो रैट को के लिए सिर्फ होता है, सिर्फ रैट को शिकार करता है और किसी का नहीं करता है। फिर उसके बाद ये कोलाब्रेडी को दिखाया है, कोबरा को, और फिर इसी तरीके से दूसरे स्नेक्स, रैट स्नेक्स के दिखाए गए हैं, दूसरे कंपैरेटिवली दिखाए गए हैं। और उनको सिर्फ स्केल के ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि अगर स्मॉल स्केल्स हैं, छोटे स्नेक्स हैं, और इसकी जो आप दुम देखें ज़रा, टेपर जो होती है वो ऐसे आके हुई है, ये आहिस्ता 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 छोटी हो गई। ये स्नेक इतने पॉइजनस नहीं होते ह्यूमन के लिए, देखने में ख़तरनाक हैं ये, लेकिन होते नहीं। पहले तो इसी का जिक्र करते हैं ना। दूसरा जो ख़तरनाक स्नेक है वो रसल वाइपर है। ये पाया जाता है जी, थरपारकर में भी होता है, ठट्टा में भी होता है। बहुत ज़्यादा हिसिंग साउंड होती है इसकी, ठीक ठाक वार्निंग साउंड देता है ये।
और इसके जो फैंग्स होते हैं वो बहुत बड़े से फैंग्स होते हैं। इससे बड़े फैंग्स किसी भी स्नेक में नहीं होते। अगर आप इसके फैंग देखेंगे तो आप खौफजदा हो जाएंगे, इतने बड़े फैंग्स होते हैं इसके। और ये दूसरे भी और स्नेक दिखाए इन्होंने, इसके नाम लिखे हैं जो ज़ाहिर है कुछ इंडिया में हैं, कुछ हमारे बॉर्डर पे हैं। ये आते रहते हैं, हम देखते रहते हैं इनको। और ज़ाहिर है कि इसमें से कुछ पॉइजनस भी हैं, कुछ नॉन पॉइजनस भी हैं। 100 स्केल वाइपर जो होता है, कैट स्नेक जिसे आप कहते हैं, ये जैसे स्केल जो होते हैं जब हाथ लगाएंगे ऐसा लगेगा जैसे जैसे कि आपने किसी आरी के ऊपर हाथ रख कर पे फेर के देखें इसको ज़रा। अब इसकी आप टेल को देखें, बिल्कुल पतली है ये। तो ये जो है ना 100 स्केल वाइपर जो कहलाते हैं, ये वाइपर्स हैं। ये छोटे स्नेक्स हैं ये ना। अब ये देख घूम गया ये ना, केचली जिसे कहते हैं ना, इसे बनाई। फिर ये जंप देता है, जंप दे के काटता है, ऐसे नहीं काटता है, साउंड प्रोड्यूस करेगा और फिर काटेगा। तो वाइपरिटी वाले जो स्नेक्स होते हैं, वाइपर्स कहलाते हैं, वो अमेरिकन जोन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर जो है पॉइजनस स्नेक्स हैं। अब ये स्नेक्स उन्होंने दिखाए हैं मुख्तलिफ टाइप के, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। जो हर स्नेक जो होता है वो इम्पोर्टेंट पॉइजनस स्नेक नहीं होता, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन उसको चेक करना होगा आपको स्केल के से। नॉर्मल स्नेक तो आपको ये कुर्दन, ये कराची में भी पाया जाता है, ये बच्चे भी पकड़ लेते हैं। ब्लाइंड स्नेक होता है ये, और ये बिल्कुल बेज़रर होता है। ये खेतों वेतों में भी मिल जाता है, बागों में भी होता है। और इसी तरह से रेड सैंड बोआ, बोआ कहते हैं इसको, इसकी भी आप टेल देखेंगे, आप ये देखेंगे कितनी ऊपर से आई है, बहुत मोटी, फिर पतली होती चली गई। स्केल्स आप देखें इसके, ये स्केल्स हैं इसके। और हेड जो है इसका ट्रायंगुलर नहीं है, राउंडेड है। नॉन पॉइजनस स्नेक है, कॉमन कुकरी है, ये भी यहाँ पाया जाता है, और खूबसूरत स्नेक है ये, तो ये भी नॉन पॉइजनस है। ये भी इसी तरीके से दूसरे हैं जो पाए जाते हैं, इनको हाथ में देख के दिखा रहा है आपको। अब ये पाइथन ग्रुप है, इनका काम, ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के स्नेक्स हैं, 12 फीट 13 फीट के, और तकरीबन 40-40 किलो के वज़न के होते हैं। ये जो है ना स्ट्रॉन्गलेट करके मारते हैं जानवर को, फिर उसके बाद उसको साबुत निकल जाते हैं। तो ये ह्यूमन के लिए सिर्फ इस तरह से डेंजरस होते हैं। हमारा लिए इम्पोर्टेंट इस बात की है कि इसको पालते हैं जो लोग, समझते हैं कि ये बेज़रर है, क्योंकि स्नेक तो किसी का साथी नहीं होता। तो वो मौका आता है, छोटे बच्चे को क्या करता है, गला, उसको तो भूख लग रही होती है तो वो गला दबा देता है, उसका स्ट्रॉन्गलेट कर देता है, मार देता है। और जब वो मार देगा उसको, फिर क्या होगा, तो पेशेंट जो होगा, बच्चा मर जाएगा, और फिर उसको निकल जाएगा वो। ब्राउन बैक ट्री स्नेक, ये देखिए, ये भी पाए जाते हैं और खूबसूरत स्नेक्स होते हैं, लेकिन ये इनमें पॉइजन नहीं होता कोई। चक्कर किल बैक है, ये नील कॉली जो ये इंडिया में भी पाया जाता है, डेजर्ट स्नेक है, इसमें पॉइजन नहीं होता है। तो ये जो होता है, ये कार्ड भी ले अगर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चोट लगेगी। वाइन स्नेक है, एर्तुला नास्टस, इसका भी आप देखिए, यही होता है कि इसमें फैंक्स नहीं मौजूद हैं, इसमें टीथ हैं और वो बराबर साइज़ के हैं। सिर्फ आपको काटे भी लिया तो खाली दांत इसके गड़ेंगे, लेकिन पॉइजन नहीं आएगा कोई भी। ये जो दिखाया है, इसी स्नेक को मूव करते हुए दिखाया है। अब कोई भी देखेगा तो खौफजदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली ये नॉन पॉइजनस है, इसको पकड़ लेंगे कुछ नहीं होता। स्ट्राइप्ड स्नेक दूसरे होते हैं, फिजिम टाइप के, और पम्बियो, ये सारे स्नेक जो है ना डेजर्ट स्नेक्स हैं। इसी तरीके से कॉमन वुल्फ स्नेक्स हैं, ये वुल्फ इसलिए कि वुल्फ की जो धारियाँ होती हैं उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये भी नॉन पॉइजनस है। कैट स्नेक जो होता है ये देखने में खौफनाक होता है, लेकिन इसके भी फैंग्स नहीं होते इसमें टीथ होते हैं, और ये टीथ जो है ना पकड़ता है,
जिसको उसको शिकार करना होता है और स्ट्रंगुलेट करता है। ये वेनमस स्नेक्स हैं जिनकी मैंने बात की थी, जो आपको दिखाया गया है। इसके अंदर जो स्नेक जो है ना वो अपनी हाइट से ऊपर खड़ा हो गया है, तो ये हिस कर रहा है। ये इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें फैंग्स होते हैं, और जाहिर है कि ये स्नेक जो है, इसकी दुम देखिए आप, नीचे आके पतली हुई आके, ठीक है ना। ये जो है ना ये वेनोमस स्नेक है। ये कोबरा स्पेसिफिकली दिखाया गया है, इसको ये ऊपर खड़ा हो गया है। एक बाज़ दफ़ा जो होते हैं ये 3 फीट भी खड़े हो जाते हैं ऊपर, और इससे बड़े बड़े स्नेक जो कहलाते हैं, किंग कोबरा कहलाते हैं ना, वो मैंने खुद देखे अपने आंखों से। 6 फीट तक उन्होंने वो खड़े हुए हैं, यानी मेरा हाइट है 5'9" 10 इंच होगी, मुझसे ऊपर चला गया वो। मैं सामने खड़ा था, वो मेरे सामने खड़ा था, क्योंकि मैंने किसी से बुलवाया था, देखना चाहता था वो क्या चीज़ होती है। तो उसका वज़न जो था वो 70 किलो से ज़्यादा था, और उसकी जो लंबाई थी वो 18 फीट थी। वो जोगी के पास था, उसने फैंग्स निकाल दिए थे उसके। तो वो लोगों से जो थे वहाँ पे, हिंदू यात्री जो होते थे, उसे पूजा करते थे। तो मैंने उसको पैसे दे के देखने के लिए बुलाया था, मैं देखूँ तो सही ज़रा ये क्या चीज़ होती है। तो उसने कहा कि सर ये जो आपने मेजर्स कर रहे हैं ना डेजर्ट में बचाने के स्नेक रेपेलेंट्स, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है कि हर चीज़ को पार कर जाता है। और ये कि किंग है, ये तो जाहिर बात है, ये छोटे बड़े स्नेक खा जाता है। इसके ग़िज़ाई स्नेक है, ह्यूमन से इसका कोई वो ताल्लुक़ नहीं है। ये ह्यूमन से वैसे ही भागता है, लेकिन अगर ये आपके सामने आ गया तो फिर ये झगड़ा करेगा फिर आपके साथ, ना जा, या किंग को या ना जाना जाओ, दोनों जो है एक ही कैटेगरी के हैं। तो ये किसी सूरत में भी जो नहीं छोड़ेगा आपको, या आप इसको मार दें या आप इसको मार दें। यानी जिसको कहते हैं ना फाइट बिटवीन द टू फाइटर्स, डुअल फाइट कहते हैं ना, वोट करनी पड़ेगी अब आपको, या तो खुद करना पड़ेगा। अगर आप भागेंगे तो ये पीछे आपके आएगा, जैसा आपको मरना है या अब इसको मरना है, और ये तय आपको खुद करना होगा। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। ये ना छेड़ा जाएगा तो ये करेगा, अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा, ये मूव कर देगा, आगे चला जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि डिस्कशन जो है ये कोई नहीं करेगा, लेकिन ये हमें करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्या करें फिर। कॉमन क्रेज बुल्गारिया सैलडस, ये किसी ने नहीं देखा होगा, ये मैंने देखा है। ये वो स्नेक है जो कि थरपारा में पाया जाता है, और इसका तरीका जो वारदात है वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। इसका जो बाइट होती है वो एनेस्थेटिक बाइट होती है हमेशा। जब ये काटता है, किसी को डसता है या काटता है, तो फैंग यहाँ मारता है, और ब्लीडिंग भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता कि कहाँ पे काटा गया, और वो एनेस्थाइज हो जाता है, एरिया एनेस्थीसिया में चला जाता है। फिर वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके पैरालाइज करता है। ये ज़्यादातर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और सबसे पहले हलक को इफेक्ट करता है, पैलेटल एरिया को, या आप जो नर्व सप्लाई है पैलेट की, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। तो आदमी समझता है उसका गला ख़राब हो गया, या गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, फिर वॉइस ख़राब हो जाती है उसकी, फिर वॉइस ख़त्म हो जाती है उसकी। और वो जो होता है इसको पीण कहते हैं। उनका ख्याल है कि सांस पीता है, पीण का मतलब सिंधी में सांस को पीना। ये स्नेक मैंने देखा है खुद अपनी आँखों से, और ये बहुत खूबसूरत स्नेक होता है। वैसे तो वेनमस है, आपको लगेगा बुरा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत स्नेक है, और उसको पकड़ना आसान काम नहीं होता। उसको पकड़ लिया जाए तो एक महंगा स्नेक है ये, डेफिनेटली। तो ये वाला वो तो गायब हो गया, मैंने तो देख लिया था, लेकिन वो गायब हो चुका था। और ये इतनी साउंड वाउंड भी प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब अजीब सी बात ये है कि ये जब काटेगा तो पेन होना चाहिए ना, जब काटता है तो कोई पेन नहीं होता। ये याद रखने वाली चीज़ है। तो ये जो काटेगा तो कोई ब्लीड भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं कराएगा ये, इसका कोई भी हेमोटॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, वास्कुलोटॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं है, इसका सिर्फ जेनेरोलॉजिक इफेक्ट है। और स्पेसिफिकली जो है ना वो नर्व जो है ना जो इन्वॉल्व करेगा, 10th नर्व को, विगस को करेगा स्पेसिफिकली। ये भी एक अजीब सी बात
कि वो उसको इफेक्ट करता है, वहाँ से जो है ना प्रॉब्लम शुरू होता है। पेशेंट को जो है ना पैरालाइज हो जाता है। वो विगस अगर आपकी चली गई तो फिर इसका मतलब है कि विगस नर्व को कम्प्लीटली अगर पैरालिसिस कर देगा तो वो कॉर्ड गई आपकी, वो एपिग्लॉटिस गया, तो वहाँ जब सबसे सारे ही पैरालाइज हो जाएगा, ना तो आदमी निकल सकता है। उसी में यही होगा कि आप जो है ना वो खाते खाते जो है वो आपको जो है वो झटका लगेगा और ट्रेकिया में चला जाएगा और सांस रुक जाएगी आपकी, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशेंट की डेथ हो जाएगी, यानी काम एंड क्वाइट डेथ। और क्या हुआ था कोई पता नहीं। डे के अंदर ये काटता नहीं है, हमेशा नाइट में ही इसके ज़्यादातर वाक़यात हुए। क्योंकि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ पे मैंने जो सुना है देखा है वो यही है जो मैंने अभी शेयर किया आपसे। तो इसको भी याद रखिएगा कि ये पाया जाता है यहाँ, ये कॉमन क्रिएट है। ये वो था सांप जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। ब्यूटीफुल स्नेक, वेरी वेरी क्विकली मूविंग। मॉस्क थी उसके ऊपर ये भाग रहा था, उसकी जो ठेले के ऊपर से। तो मैंने इसको देखा, मैंने लाइट मारी तो ये मुझे नज़र आया और फिर ये गायब हो गया। तो लोगों ने बताया नहीं कोई बात नहीं है, वो आप परेशान मत हो। मैंने कहा नहीं परेशान होने की बात नहीं, मैं तो खुद रिसर्च करने के चक्कर में नहीं। देखें आप इसकी खूबसूरती देखें ज़रा। तो ये जो बताए गए ये डिफरेंट टाइप्स के इसी यानी स्पीशीज से बताए गए। जैसे क्रेट, जो दूसरा क्रेट है बैंडेड क्रेट भी होता है यहाँ, ये भी पाया जाता है। और ये भी जो है ना अच्छा खासा जो है ना मुश्किल स्नेक है, और लोग कॉमन नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी होता है और ये भी पॉइजनस है और इसके भी न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है बेसिकली। रसल वाइपर जो है मैंने आपसे पहले बताया वेनमस है, और ये बहुत इसके फैंग जो है ना बहुत बड़े होते हैं और इसकी जो लीथल डोज होती है वो भी अच्छी खासी। एक वक्त में ये 10 ml 5 ml से ज़्यादा इंजेक्ट कर देता है, मतलब बचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये वाइपर जो है रसल्स वाइपर नाम है, डोबिया रसल, ये कॉमन नेम है यहाँ का, सिंध का नाम है ये डोबिया। यह काट जाए तो फिर तो जाहिर है कि अगर आपने टाइम पे नहीं किया इसको मैनेज तो फिर तो बहुत मुश्किल है बचना। इसके जो है ना ये देखें, ये अंदाज देखें, ये इस तरह से वो केचली बना के बैठा है राउंडेडली और वो अटैक कर रहा है। ये और अटैक करेगा तो इसके फैंग जो है ना 100 स्केल वाइपर के या पिट वाइपर, ये छोटे वाइपर्स हैं, छोटे छोटे हैं। ये आपका क्या ख्याल है कितने छोटे हो सकते हैं? इसके से पिट पड़ा हुआ है, इसमें नज़र आ रहा है आपको पिट, ये आइज हैं, ये पिट पड़ा हुआ है। हुक नोज सी स्नेक है। ये स्नेक्स जो है ना ये ज़्यादातर जो होते हैं समंदर के पास पाए जाते हैं। ये काटते तो हैं लेकिन ये पॉइजनस इस तरह से हैं कि ये इनका न्यूरोटॉक्सिन भी नहीं होता, इसमें वास्कुलर टॉक्सिन भी नहीं होता, हीमोटॉक्सिन भी नहीं होता, इनके अंदर मायोटॉक्सिन होता है। तो ये मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं, मसल को डिजेनरेट कर देते हैं, इतने ज़्यादा कर देते हैं तो मसल एट्रोफी में आ जाता है। और फिर जब मसल टूटता है तो वह मायोग्लोबिन रिलीज होता है, तो मायोग्लोबिन रिलीज होता है तो रीनल फेलियर में जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। हाँ पेनफुल कंडीशन तो है ये मसल के अंदर, जब जाहिर है कि आप तोड़ेंगे इसको तो फिर पेनफुल कंडीशन है। और कॉरल स्नेक्स अब यहाँ पे आए ना, ये यहाँ पे इतने कॉमन नहीं है, अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है। इनको ये गिलासों के अंदर भी बंद करके रखते हैं। बहुत खूबसूरत स्नेक्स होते हैं, कलर्ड, इनके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये जो होती है ये खूबसूरत बला है जिसे आप कहते हैं। ये पॉइजन स्नेक है, बहुत ज़बरदस्त पॉइजन स्नेक, यहाँ पे नहीं हमने देखा कभी। अब ये जो है ना स्नेक की आपको टाइप बताने का मकसद ये आपको समझ में आ जाए कि स्नेक जो होते हैं वो वेनमस भी होते हैं, नॉन वेनमस भी होते हैं। सबसे पहला काम जो करते हैं आप इसके अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। मैं जो काम करता हूँ वो रीश्योरेंस करता हूँ। मरीज़ को एतमाद मिलना बहुत ज़रूरी है कि खौफ से 90% मरीज़ जो मर जाते हैं। ये हमारी स्टडी है, हमने देखी है, हमने काम किया, 1200 स्नेक पे काम कर चुके हैं। जिन लोगों की डेथ की हिस्ट्री आई थी वो उसी वक्त मर गए थे। तो यहाँ पे तो कोई स्नेक नहीं है जो 5 मिनट में मारते आपको, इधर पाया ही नहीं जाती।
वो तो या तो फिर वो मामा होते नहीं हैं, और या फिर जो था वो था जिसका टाइपान का नाम लिया था मैंने आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो भी यहाँ नहीं होता। तो फिर ये अचानक कैसे हो गया? यानी उसे काटने के बाद 5 मिनट में मर गया वो खौफ की वजह से मर गया। इस टेरर हॉरर जितनी चीज़ होती है आप सोच भी नहीं सकते। वो सारी की सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्लॉक कर देता है उसको, और ब्लॉक करने के बाद ऊपर से सिग्नल ही नीचे नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? पेशेंट जो है ना न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाएगा और वो वापस निकाला नहीं जा सकता, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले रिश्योर करना चाहिए। फिर जो स्नेक ने हमने काटा है तो पहली बात तो ये झूठा दिलासा दें कि नॉन वेनमस भी तो हो सकता है ना वो, है ना, या थॉर्न भी हो सकता है, आपको नज़र ही नहीं आया, या कोई और चीज़ हो, स्पाइडर ने काटा हो आपको, स्कॉर्पियन ने काटा हो, उसको दिलासा दें आप। और पांचवा दिलासा ये होता है कि अगर काट भी लिया है तो फिर इसका ट्रीटमेंट होता है, आदमी बच जाते हैं। ये जोगियों का काम नहीं है, ये हमारा काम है। ये जोगी वोगी जो होते हैं इनका काम नहीं होता है। सबसे पहले तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है अभी डिस्कस किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल किया जाए प्रॉपर। थर्ड काम ये किया रैपिड क्लिनिकल असेसमेंट एंड असिस्टेशन की जाए। और चौथा ये किया जाए इन्वेस्टिगेशन लैब टेस्ट किए जाए। 4 में डिवाइड किया गया इसको। फिर एंटी वेनिन ट्रीटमेंट इसका स्पेसिफिक थेरेपी है। ये पाकिस्तान में जो है ना ये बनाया जाता है। 4 या 5 स्नेक से ये बनाते हैं, पोलीवेलेंट एंटी वेनम स्नेक होता है, ये वो बनाते हैं और उसको फिर देते हैं। इसका भी एक तरीका देने का एक ख़ास तरीका होता है जो दिया जाता है। क्योंकि लेक्चर मैंने आपसे पहले बताया कि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अगर जो शौकीन आदमी है इसके सुनने वाले तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। इसको अगर वीडियो को देखेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में देखें चाहे इंडिया में देखें, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। फिर सपोर्टिव एंसेलरी ट्रीटमेंट होते हैं जिनको हम करते हैं पेशेंट पे। और फिर इसके बाद बिटन पार्ट जहाँ काटा गया उसका जो नेक्रोसिस हुआ है उसमें गैंग्रीन बनने का ख़तरा है तो उसको भी मैनेज करें और रिहेबिलिटेशन करें बाद में पेशेंट। ये 4 बुनियादी मकसद थे। 5वां ये था कि अगर हो गई कॉम्प्लिकेशन जो अभी बताई जाएगी आपको, ज़ाहिर है उसको एक साथ हम इसको बता रहे हैं, टुकड़ों की शक्ल में आपको बता रहे हैं, एक साथ नहीं बता रहे। तो यहाँ तक जो है ना मैंने आपको बताया, और यहाँ पर जो है ना वो मैंने ये बताया कि अगर आपके पास कोई बाइट हो गई है तो सबसे पहले रिश्योरेंस करेंगे और फिर फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे जो कि रिकमेंड करता है WHO। यहाँ तक इसको जो है ना हमने पार्ट 1 पर रखा है इसको। अब इसके बाद इसको पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 2 में आपको ये पता चलेगा कि इसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसको 2 में करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा ये, वरना ये लंबा हो जाएगा लेक्चर बहुत ज़्यादा। मैंने कहा मैं 4 घंटे तो मैं आराम से बात कर लेता हूँ इस पर, 4 घंटे तो आप सुनने को भी तैयार नहीं होंगे। तो चलो इसको 2 हिस्सों में करते हैं और काम की बात आपको बताते हैं। सेकंड पार्ट इसको करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट पे इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और फिर सेकंड पार्ट लेते हैं। वमा लना इल्लल बलाग।